बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट एंड आर्टरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज। इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। अगर हम पहले हार्ट की बात करेंगे, द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो हार्ट जो होता है मेड अप ऑफ कार्डिक मसल जो होते हैं मस्कुलर सिस्टम में, अमंग द टाइप्स ऑफ द मसल्स, कार्डिक मसल्स का मेड अप होता है। तो इट्स नोन एज मस्कुलर ऑर्गन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इट पंप्स इनसाइड द बॉडी। द एक्शन ऑफ द हार्ट इज वेरी फंडामेंटल, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन इट। हार्ट होता है, इट हैज ए फंडामेंटल एक्शन। The actions of heart are fundamental क्योंकि each and everything rests upon the heart. During entire life span में क्या होता है, it keeps on working. It did not stop its work. ये continue अपना काम करता है. If it stops work, then there will be no life. In order to maintain the supply of oxygen and nutrition to the cells, the heart has to work. Rest of the life, the heart has to work for the entire life. तो इसका काम जो होता है वो होता है कि it maintains the supply of oxygen and nutrition to the cells, tissues and organs and other organs to keep them regular. And also it eliminates, it sweeps the जो waste products हमारी बॉडी में होते हैं। लैक्टिक एसिड होता है, एसिडिक फॉस्फेट होता है, तो उस पंप करने की वजह से उनको ये वर्किंग रहता है। इफ इट डज नॉट वर्क, इफ इट डज नॉट पंप द ब्लड टू द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इफ इट डिड नॉट एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, देन जो सेल्स ऑफ द बॉडी होंगे दे विल बी स्टार्व। उनको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ही ऑक्सीजन मिलेगा सेल्स को, और ना ही हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, एंड दैट विल बी हैव अ वेरी डेंजरस इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। जो हार्ट होता है, द वेट ऑफ द हार्ट इज अराउंड 300 ग्राम्स, और जो हार्ट होता है इट लाइज अबव द एपेक्स ऑफ आवर it lies above the throat, above the thorax जिसको बोलते हैं, above the throat, near about above the thorax cavity. जो thorax cavity होती है, it lies over that, and near the diaphragm, जो diaphragm होता है, that helps us in diaphragm depression जिसको बोलते हैं, that helps us into the inhalation and exhalation. It lies over there. जो दो होता है ये कि जो heart होता है, during contraction of the heart we can feel it against the chest walls, between the near about 5th and the 6th rib. जो ribs होती है हमारी body, we can feel it, or just we can feel it below the left nipple जो होती है हमारे left nipple, about 8 centimeters away from the midline of the body. जो heart की location होती है, it's located above the diaphragm depression. Diaphragm depression means the diaphragm that helps us with inhalation and exhalation. But diaphragm जो होता है, जो it's the size of the heart is about our fist. जो हमारा हाथ का fist, जो हमारा हाथ होता है, if we make a fist of our hand, it will be like the size of that. 300 grams इसका weight हो सकता है near about. तो during contraction when the heart works, we can feel it a little bit near the ribs, 6th and the 5th and 6th rib. अगर हम बात करेंगे arteries की, arteries means which carries the blood from the heart. तो arteries का काम ये तो है कि it contains in blood contains in arteries में होता है, but it has a very high pressure. Therefore they are contained in, जैसे कि the blood is contained in, एक तो elastic, muscular और thick walls में होता है arteries से, फिर arterioles, फिर capillaries, फिर veins को, these are the मतलब
arteries, these are carrying the blood. जो आर्टरीज होते हैं दे आर वास्टली एक्सटेंडेड, दे आर द वास्टली एक्सटेंडेड आर्टरीज. तो जो आर्टरीज होते हैं दे हैव टू रिसीव द एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू देम. आफ्टर दैट, आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, द आर्टरीज रिसीव द ब्लड फ्रॉम द हार्ट. तो उससे क्या हो जाता है, जो आर्टरीज रिसीव करती है ब्लड, इवन देन मतलब कि दे कैन डेड इफ दे आर समटाइम्स एम्प्टी, they did not collapse. The arteries did not collapse if they are empty in some times, but only in the opening region जो होता है muscular cords का, they can contract. Opening में जो होता है, अगर हम क्लासिफिकेशन आर्टरीज को हम क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो उसमें होता है, एक तो होता है इलास्टिक आर्टरी, दूसरा होता है मस्कुलर आर्टरी, तीसरा होता है आर्टेरियल्स, जो स्मॉल वंस. तो इलास्टिक आर्टरीज क्या होती है, दीज आर्टरीज आर लीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट. तो अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो आर्टरीज होती है उनका मेन वर्क होता है, दे आर नोन एज मतलब कंडक्टिंग आर्टरीज. कंडक्टिंग आर्टरीज होती है एज दे कंडक्ट ब्लड टू द मस्कुलर आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट. वो ब्लड करते हैं कंडक्ट फ्रॉम द मस्कुलर टू मस्कुलर आर्टरीज को कंडक्ट करते हैं. दीज आर लार्ज इनटू शेप, उनका जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर के बदले द लार्ज अमंग द ऑल आर्टरीज. They are very much elastic. They can sustain the shock. They can bear such kind of contraction of the heart. Sometimes if it increases or sometimes if it may decreases. Number 2 is the muscular artery. Muscular arteries होते हैं तब they are medium in size. They are also known as the distributing arteries, जो distribute करते हैं blood to the all organs of our body. Elastic arteries जो होते हैं they are known as उनको बोलते हैं conducting arteries. और इलास्टिक आर्टरीज से होता है सप्लाई मस्कुलर आर्टरीज में. मस्कुलर आर्टरीज होते हैं वो दे आर मीडियम इन द साइज एंड दे डिस्ट्रीब्यूट it to the various they distribute the blood to the various organs of our body. Number 3 that's called arterials. Arterials वो होते हैं, these are the muscular arteries जिनको बोलते हैं. They are very small in size but these arteries which maintain the blood pressure of the body. जो आर्टेरियल्स होते हैं दे मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी इन जनरल में सिंपली. नंबर 4 अगर हम बात करेंगे दैट इज द वेन्स. वेन्स का काम यह होता है कि जब व्हेन ब्लड बिकम्स द इम्प्योर इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में ब्लड ये होता है इम्प्योर बन जाता है, यूज होता है आफ्टर द यूज ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, तो उनका काम होता है द जॉब ऑफ वेन इज टू रिटर्न द ब्लड बैक टू द हार्ट. सिमिलरली वेन जो होते हैं वो भी स्ट्रक्चर में जैसे आर्टरीज होती हैं वैसे उनके भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट वेन जो होता है इनकी टेंडेंसी है कि they will collapse. Sometimes they will collapse if they are empty, if they are not filled with the blood. जो diameter of the veins होता है returning blood to the heart of the organ are double as compared to the other arteries जो होता है. veins present होते हैं lower limbs में भी upper limbs में, but in lower limbs जो veins होते हैं have a greater number of valves as compared to upper limbs. The valves are not found into the veins, but they are different kind of veins are found into upper and lower limbs.